Namaskar students, I'm SK NND first sem. I Sakshi Pandey, Faculty of Agriculture and Veterinary Science, and today's session topic of your course nutrition is your protein and amino acids. So thereby I'm sharing the screen so that you may understand in much better way. Okay, so then like in this topic, in this session, we basically talk about what are proteins and what are amino acids. So firstly, as you all know, that protein is a micronutrient. Macronutrient means it's an energy giving nutrient. Okay, it basically perform the function for the growth and development of the body, formation of your cells and tissues. Plus, it also helps to provide the energy. So what are protein? It is a larger molecules, or you may say it's a large molecule that is made up of nitrogen containing amino acids that are united together by the peptide linkage. Okay, so try to understand this in much better way. Like जैसे आपके प्रोटीन होते हैं, it is a large molecule. Okay, large molecule क्यों बोला जा रहा है इन्हें? क्योंकि ये आपस में इनकी स्मॉलर यूनिट होती है, दैट इज योर अमीनो एसिड्स. ठीक है, तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपके पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा जब आपस में अटैच्ड होते हैं और इनमें एक आपका नाइट्रोजन ग्रुप भी अटैच्ड होता है, तो वो आपके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं जिनको हम प्रोटीन कहते हैं. So in adult body weight, approximately 16% of protein may contributed. ठीक है, next to the water. जैसे आपको पता होगा, like maximum weight जो होता है human body में, that is of water. And after water, protein is about like 16% of total body weight. Okay. Protein are indissimilar and constitute of the living protoplasm as they participate in all vital processes. So जितने भी body के आपके vital processes होते हैं, जितने भी आपके major functions होते हैं, तो protein involves in all those things. Okay, there are total 22 amino acids that are known by physically important for the human body. ठीक है, so amino acids as like हम discuss करेंगे in next session कि amino acids क्या होते हैं and what are their basic classifications. सो बेसिकली आपके 22 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं जो नोन होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए. ठीक है, अदर देन दिस दे आर वास्ट ऑफ अमीनो एसिड्स. Under the proper condition, the body is capable of synthesizing some of these amino acids with adequate nitrogen called non-essential amino acids. So the thing that you have to be considered in this, like there are two types of amino acids. First is your essential and second is your non-essential. So non-essential amino acids क्या होते हैं? Basically these are those which is synthesized by our own body. मतलब वो अमीनो एसिड जो आपके शरीर में अपने आप सिंथेसाइज्ड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन, तो उनको हम नॉन एसेंशियल्स कहते हैं. अब एसेंशियल्स कौन से होते हैं? जो आपकी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं. ये अमीनो एसिड्स यू हैव टू टेक इट फ्रॉम योर डाइट. जो आप डाइट से या फूड से लेते हैं, तो दोज आर योर एसेंशियल अमीनो एसिड्स. ठीक है, तो इसके साथ जैसे आपके इनके एग्जाम्पल्स डिफरेंट होते हैं, नॉन एसेंशियल्स की कैटेगरीज डिफरेंट होती है, एसेंशियल की कैटेगरीज डिफरेंट होती है. बट इसमें एक आपका अमीनो एसिड्स होता है दैट इज योर हिस्टिडिन. हिस्टिडिन अमीनो एसिड्स आपके क्या होते हैं? इट कंसिडर अंडर द बोथ, दैट इज नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल. व्हाई इज दैट सो? क्योंकि हिस्टिडिन जो होता है वो पहले ह्यूमन बॉडी में एज एन इन्फेंट, ठीक है, मतलब जो बच्चे होते हैं उनमें पाया जाता है. बट एज यू ग्रो एज एन अडल्ट, तो हिस्टिडिन आपकी बॉडी में सिंथेसाइज होना बंद हो जाता है. ठीक है, तो बट हिस्टिडिन सिंथेसाइज होता है स्टार्टिंग में. तो दिस इज द ओनली अमीनो एसिड which is considered as essential as well as non-essential. So this is the important topic as the point of like आपके competitive exam के point of view से this is the important one question to be understand. Other than this, the sources of protein. So sources of protein क्या होती है? Basically there are two types of dietary sources of protein. First is your animal source and second is your vegetable source. Okay, so as you have know, animal sources क्या होती हैं? जो आपके animal proteins होते हैं, जैसे आपके eggs हो गया, milk, मीट प्रोडक्ट्स, फिश, पोल्ट्री, तो वहां से जो भी आपका प्रोटीन आ रहा है दैट इज ऑफ योर एनिमल सोर्स. वेजिटेबल सोर्सेज जो आपकी होती हैं वो आपकी लो क्वालिटी प्रोटीन होता है उसमें, और लो क्वालिटी प्रोटीन जो आपके होते हैं वो आपकी पल्सेस, नट्स, सीरियल्स एंड बीन्स, इन सब से आते हैं. ठीक है, अब लो और हाई क्वालिटी प्रोटीन का क्या मतलब यहाँ पे जो बेसिक जो आपका कंसेप्ट है वो ये है कि जो आपका हाई बायोलॉजिकल वैल्यू का है, जो हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, it consists all the essential amino acids. Okay, it doesn't limit in any of the essential amino acids. तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? हाई क्वालिटी. लो क्वालिटी या फेयर क्वालिटी क्या होता है? जो आपका एक ना एक एसेंशियल अमीनो एसिड जिसमें लैक होता है या जिसकी कमी होती है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन. ओके, जो आपकी प्लांट सोर्सेज होती हैं दैट कंसिडर अंडर योर लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन.
Other than this, now we will talk about the function of protein. So function of protein, as you all know, it is basically required for the bodybuilding. It's have journal function of the bodybuilding. Okay, so bodybuilding का इसका major function होता है, plus the growth and repair and the maintenance of the body tissue is also the one of the function of your protein. Second, it is required for the synthesis of the plasma protein, that is your hemoglobin, enzymes and hormones. Okay, so प्रोटीन आपका सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ बहुत सारे ऐसे आपके फंक्शन परफॉर्म करता है दैट यू मे हैव नो. ओके, तो फर्स्ट तो आपके प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं, मतलब आपके प्लाज्मा जो आपका ब्लड प्लाज्मा होता है, तो ब्लड प्लाज्मा में जो प्रोटीन होते हैं, ब्लड प्लाज्मा में जो भी जितने भी प्रोटीन होते हैं, जैसे कि आपकी एंटीबॉडीज होते हैं, तो एंटीबॉडीज का भी जो आपका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है दैट इज ऑल्सो मेड फ्रॉम योर प्रोटीन. अदर देन दिस हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एज यू ऑल नो, हीमोग्लोबिन को अगर आप डिवाइड करते हैं इसके टर्म को, तो इट कंसिस्ट ऑफ हीमो प्लस ग्लोबुलिन. ओके, तो हीम जो होता है वो तो आपका आयरन से आता है, और जो ग्लोबिन होता है, ग्लोबुलिन वाला पार्ट आपका कहाँ से आता है, प्रोटीन से आता है. ठीक है, तो हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो योर वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ योर ब्लड विच इज सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोटीन. अदर देन दिस एंजाइम्स, ठीक है, जो आपके बेसिक एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स की भी जो यूनिट होती है, जो एंजाइम्स बने हुए होते हैं, दैट इज आल्सो मेड फ्रॉम द प्रोटीन एंड हार्मोन्स आल्सो. ओके, तो ये जितने भी आपके हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन और हीमोग्लोबिन, तो इन सबके सिंथेसिस में भी प्रोटीन आपका क्या करता है, रिक्वायर्ड होता है. The third function of protein is the protein is like collagen. Collagen, actin, myosin form the structural tissue, skin and muscle. So as you may have like read in human physiology, अगर जैसे आपने human physiology जब पढ़ी होगी, so you may have know about the types of tissues. तो human body के tissues में आपका एक skeletal tissue आता है या structural tissues आते हैं. Structural tissues क्या होते हैं आपके, वो टिश्यूज होते हैं जो आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं. ठीक है, इसमें मेनली आपका एक्टिन और मायोसिन होता है जो आपके मसल्स को फॉर्म करता है. और इसके एक्टिन और मायोसिन और कोलाजन, ये आपके क्या होते हैं, आपके मसल प्रोटीन होते हैं. ये आपके मसल के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होते हैं. ठीक है, और मसल किससे बनती है, फर्स्ट यू हैव टू नो कि आपके सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज के कॉम्बिनेशन से आपके क्या बनते हैं, मसल्स बनते हैं. और ये जो मसल्स हैं आपकी, जैसे कि आपके कोलेजन, ये मसल्स के जो टिश्यूज होते हैं, that are basically three types, that is your collagen, actin and myosin. और ये एक्टिन, मायोसिन और कोलेजन जो भी है, ये आपका किससे बनता है, प्रोटीन से बनता है. ठीक है, तो जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा दैट प्रोटीन इज हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो ये किसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है, ये टिश्यूज की करता है, स्ट्रक्चरल टिश्यूज की करता है. और स्ट्रक्चरल टिश्यूज की जैसे ग्रोथ होती है, तो आपकी ह्यूमन बॉडी की भी ग्रोथ होती है. The third is here, protein act as a transport carrier, many molecule like iron, hemoglobin, lipid, etc. Transport carriers क्या होते हैं? So as the name suggests, transport carrier means कि जो आपका transport के साथ, मतलब आपके body cells या आपके extra cellular से intra cellular आपके जो functions होते हैं, that is basically done by the transport carrier molecules. Okay, तो transport carrier molecules क्या करते हैं, आपके जितने भी nutrients होते हैं उनको वन प्लेस टू द अनदर प्लेस आपको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं. ठीक है, उनको कैरी करते हैं और थ्रू आउट द ट्रांसपोर्ट करते हैं. वन सच एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोर्ट कैरियर इज योर ब्लड. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लाइक एज एन एग्जाम्पल आई एम डीलिंग विद दिस. तो एग्जाम्पल आपका ऐसा है कि जैसे आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है. ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेट होने का मतलब क्या है कि जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो बाय द हेल्प ऑफ ब्लड वो आपकी बॉडी सेल्स में, आपके बॉडी टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं. तो ये जो आपका ब्लड है, ठीक है, तो ये जो ब्लड में जो मॉलिक्यूल होता है, जैसे हमने बात करी थी हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन भी आपका क्या हो रहा है, कहाँ से बन रहा है, इट ऑल्सो मेड बाय प्रोटीन. ठीक है, तो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन हमने यहाँ इनडायरेक्टली इसको डिफाइन करा है कि प्रोटीन एक्ट एज ए ट्रांसपोर्ट कैरियर. ठीक है, ट्रांसपोर्ट कैरियर की तरह एक्ट कर रहा है, जिससे कि वो आपकी बॉडी सेल्स में क्या कर सके, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट कर सके. अब अगर आपने डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद जितना ऑब्जॉर्प्शन होता है आपकी बॉडी में, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो भी आपका ब्लड होता है, वो आपके पूरे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में सर्कुलेट करता है. आपके ब्रेन सेल से लेके आपके हार्ट सेल से लेके आपके ईच एंड एवरी सेल गेट ट्रांसपोर्टेड बाय द, मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो आपके वाया ब्लड ट्रांसपोर्ट होते हैं. तो प्रोटीन एक्ट एज लाइक अ ट्रांसपोर्ट कैरियर.
Then the fifth point is antibodies are also protein. Okay, this important point I have already discussed कि antibodies के जो molecules होते हैं आपके वो भी आपके किससे बन के बनते हैं, प्रोटीन से. Antibodies क्या होती हैं? Antibodies are one such protein like which act as to fight with the pathogens. ठीक है, जितनी भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन या जितनी भी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी होती है that is always like डन बाय द एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल. तो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, जैसे अगर एग्जांपल दिए एंटीबॉडीज के तो क्या होती है आपकी, जितनी आपके WBCs होते हैं दैट इज योर व्हाइट ब्लड सेल्स, आपके ल्यूकोसाइट्स होते हैं. ठीक है, तो ये सब आपके क्या होते हैं, एक टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन ही होते हैं. तो ये प्लाज्मा प्रोटीन एंटीबॉडीज जो है आपकी वो भी क्या होती है, प्रोटीन से मिलके बनती हैं और आपके जितने भी इन्फेक्शन से या जो भी आपके एक्यूट इन्फ्लेमेशन होते हैं उन सब में ये वर्क करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज द एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन जो होता है वो भी एक टाइप का प्रोटीन होता है और इसका क्या फंक्शन होता है एल्ब्यूमिन का, इट एक्ट एज अ बफर इन द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड पीएच. तो ब्लड पीएच जो होता है, ब्लड पीएच इज योर लाइक ब्लड का जो पीएच होता है दैट इज ऑफ एसिडिक पीएच. आपका जो ह्यूमन बॉडी का ब्लड होता है दैट इज ऑफ एसिडिक. ठीक है, तो एसिडिक पीएच को मेंटेन करने के लिए जो बफर होता है, जो मतलब जो इसका पीएच मेंटेन रखता है दैट इज एल्ब्यूमिन. और एल्ब्यूमिन क्या एक टाइप का प्रोटीन है. ठीक है, and the last function is of the it also act as a source of energy. ठीक है, source of energy की तरह भी act करता है and this is I already discussed that 1 gram of protein provide 4 kilocalories. Okay, तो energy की तरह भी आपका ये प्रोटीन फंक्शन परफॉर्म करता है. नाउ द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन. ओके, तो हमने बात करी थी, मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया था कि क्वालिटी के दो टाइप के प्रोटीन होते हैं. फर्स्ट इज योर लो क्वालिटी एंड योर हाई क्वालिटी. जो लो क्वालिटी होती है उसको हम लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन भी बोलते हैं और हाई क्वालिटी वाले को हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन भी बोलते हैं. तो जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है प्रोटीन की, ये किस पे डिपेंड करती है, मतलब क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द अमीनो एसिड्स कॉम्पोजिशन. सो एज वी हैव डिस्कस्ड कि अमीनो एसिड्स आपके दो टाइप के होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल. तो असेंशियल और नॉन असेंशियल की कितनी कॉम्पोजिशन है, नॉन असेंशियल्स की तो यहाँ बात ही नहीं करनी है बिकॉज नॉन असेंशियल इज जनरली प्रोड्यूस्ड बाय योर बॉडी. ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे तो सिर्फ असेंशियल अमीनो एसिड की. ठीक है, तो असेंशियल अमीनो एसिड जितने भी होते हैं आपके, वो आपके फूड में कितने प्रेजेंट है और अमीनो एसिड्स की कॉम्पोजिशन क्या है, दैट डिफाइन योर प्रोटीन क्वालिटी. तो बायोलॉजिकली जो कंप्लीट प्रोटीन होते हैं आपके, जिनको अगर हम कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं, दैट कंटेन ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स इन अ एडिक्वेट अमाउंट. ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट प्रोटीन. अब जो आपके कंप्लीट प्रोटीन होते हैं उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं आपके, जैसे कि आपके एनिमल ओरिजिन के जितने ही प्रोटीन होते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, मीट हो गया, एग हो गया, तो दे आर बायोलॉजिकली सुपीरियर और टू द प्रोटीन ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन. तो ये जब हमने सोर्सेज डिस्कस करी थी तो दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके, कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं आपके जिसमें आपके कुछ अमीनो एसिड्स लैक होते हैं, thus they are classified as biologically incomplete protein. ठीक है, तो मतलब जहां जहां आपके असेंशियल अमीनो एसिड्स की कमी होगी वो आपका क्या बोला जाएगा, उसको इनकम्प्लीट प्रोटीन बोला जाएगा. ठीक है, जहां आपके सारे असेंशियल अमीनो एसिड्स होंगे वो आपका क्या बोला जाएगा, कंप्लीट प्रोटीन. और जो कंप्लीट प्रोटीन होगा आपका हाई क्वालिटी प्रोटीन होगा. जो लिमिटिंग अमीनो एसिड्स वाला जो प्रोटीन होगा वो आपका क्या होगा, लिमिट आपका क्या होगा, लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन होगा. जो आपके शॉर्ट असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, दे आर आल्सो नोन एज लिमिटिंग अमीनो एसिड. ठीक है, एक बहुत आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, जैसे आपके नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज योर लाइक फॉर एग्जाम्पल as like it is written on this slide, that is the limiting amino acid in wheat is lysine and in pulses is methionine. Okay, तो लाइसिन और मेथियोनिन क्या है आपके, एक टाइप के अमीनो एसिड है. ठीक है, लाइसिन आपका कौन सा अमीनो एसिड है, आपका आपका बेसिक अमीनो एसिड है, मेथियोनिन आपका सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है. तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो आपके वीट होते हैं, या वीट होता है आपका, या राइस होते हैं आपके, ठीक है, उसमें क्या होता है, मतलब सीरियल्स में अगर देखा जाए तो लाइसिन आपका क्या होता है, पाया नहीं जाता है. ठीक है, मतलब लाइसिन एक टाइप का एसेंशियल अमीनो एसिड है विच इज बेसिकली लैक इन योर सीरियल्स. और अगर पल्सेस की बात करें तो इन पल्सेस मेथियोनिन इज बेसिकली लैक. ओके, तो ये क्या है आपके, फिर ये आपके कौन से अमीनो एसिड्स में आ गए, आपके लिमिटिंग अमीनो एसिड्स में. और एक एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ, जैसे कि जैसे आपका जो, अगर इसको हम कंप्लीट प्रोटीन करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, हम जैसे चावल और दाल आपस में ऐसे मिला के ऐसे खिचड़ी बनाते हैं, पुडिंग बनाते हैं. ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपका इनकम्प्लीट प्रोटीन आपका कंप्लीट प्रोटीन में आ जाता है. ठीक है,
Now the quality of protein, like vegetable protein in vegetarian diet, can be improved by providing a suitable combination. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन अगर हम करते हैं वेजिटेबल प्रोटीन का, तो वो आपका क्या होता है, क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है. Now, the lack of particular amino acids of one protein can be compensated by simultaneous consumption of another protein. मतलब कि अगर हमें सप्लीमेंट्री एक्शन करें, सप्लीमेंट्री एक्शन व्हाट इट मीन कि आपका एक अमीनो एसिड लैक है, तो हम दूसरा अमीनो एसिड उसमें ऐड करके उसको क्या करें, उसको कंपनसेट कर सकते हैं. Combination of wheat products such as bread, pulses will compensate the deficiency of methionine and lysine. So this is I already discussed. और क्वालिटी ऑफ प्रोटीन जो होती है वो किस टर्म में देखी जाती है, बायोलॉजिकल वैल्यू के टर्म में, डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट के फॉर्म में, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन एंड प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो. तो दीज आर द बेसिक टर्म्स व्हिच इज बेसिकली यूज्ड फॉर असेसिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन. अब नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन जो होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, एंड द प्रोटीन विद नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन इज 65% is considered as the optimum quality. Okay, and egg protein is considered to have the net protein utilization of 100, and it is considered ideal for the reference protein. Now the RDF protein, अगर हम RDF protein की बात करें कितना recommended होता है, तो it depends upon like 1.5 gram per day to the like to the body weight. ठीक है, तो body weight क्या है, उस basis पे हम आपका प्रोटीन की इसकी रिक्वायरमेंट होती है, and this e-notes you may get this point in much better way. So this is all with your protein and amino acids. In case of any doubt, you may ask in the comment section. Thank you.